Welcome, my dear students. You are studying with ByPS Academic Solutions. Today we will solve two questions based on AP. So this is subscriber requested question. If m times the mth term of an AP is equal to n times nth term, then find the value of m plus nth term of the same AP. Solution. The nth term is equal to an is equal to a plus n minus 1 multiplied by t, equation 1. The mth term of the AP is equal to am is equal to a plus m minus 1 multiplied by d, equation 2. The m plus nth term of the AP is equal to a m plus n is equal to a plus m plus n minus 1 multiplied by d. This is equation 3. The problem states that m times of am is equal to n times of an. This is equation 4. From 1 and 2, put values of am and an in fourth. फोर्थ में इसकी वैल्यू रख दीजिए. तो m मल्टीप्लाइड बाई a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. m a प्लस, अब d का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो m d माइनस डी इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट a प्लस, यहाँ भी d का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n d माइनस डी. अब m का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू, और इस ब्रैकेट के अंदर n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी. अब एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी. अब ये पूरे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, तो माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0. अब एम ए माइनस एन ए को पास लिख लिया, प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी को पास में लिख लिया, माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, तो ए कॉमन लिया एम माइनस एन, प्लस यहाँ से डी कॉमन लिया, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस डी इन ब्रैकेट एम माइनस एन इज इक्वल टू 0. अब ए एम माइनस एन प्लस, अब इसके फैक्टर कर दिए, तो डी वन ब्रैकेट एम प्लस एन और दूसरा ब्रैकेट एम माइनस एन माइनस डी इन ब्रैकेट एम माइनस एन इज इक्वल टू 0. सो एम माइनस एन इन ब्रैकेट ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू 0. इस पूरे में से एम माइनस एन कॉमन लिया है, तो यहाँ से बचा ए, यहाँ से बचा एम प्लस एन और यहाँ से बचा डी इज इक्वल टू 0. ए प्लस एम प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस डी इज इक्वल टू 0. तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू 0. दिस implies a m plus n is equal to 0. So answer 0. This is from equation 3. We have put the value. This is equal to a m plus n. So this is not related to the question, but because of the curiosity, just I have find out one example related to this question. Suppose AP is equal to 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, minus 2. So its fifth term is equal to A5 is equal to 12. So 5 times of A5 is equal to 12 multiplied by 5 is equal to 60. And its sixth term A6 is equal to 10. So 6 times of A6 is equal to 10 multiplied by 6 is equal to 60. Now m plus n
is equal to 5 plus 6 is equal to 11th term. Here you can see it is equal to 0. So now we will do the next question. This question is similar to subscriber requested question. So if the mth term of an AP is 1 by n and the nth term is 1 by m, then prove that the mnth term is 1. So solution, mth term is equal to am is equal to a plus m minus 1 multiplied by d, and amth term is equal to 1 by n. So 1 by n is equal to a plus m minus 1 multiplied by d. This is equation 1. Now nth term is equal to an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. And nth term is given 1 by m. So is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. This is equation 2. Now equation 2 minus equation 1. So 1 by m minus 1 by n is equal to a plus n minus 1 multiplied by d minus a minus m minus 1 multiplied by d. तो इधर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आया एम से डिवाइड किया n टाइम्स गया तो n माइनस n से डिवाइड किया तो m टाइम्स गया तो यहाँ पर m, तो n माइनस m अपॉन एम एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर d से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एन डी माइनस डी माइनस एम डी प्लस डी, और यहाँ पर ए से कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डी से डी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एन डी माइनस एम डी, इन दोनों में से अब डी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा एन माइनस एम। अब डी इज इक्वल टू ये एन माइनस एम को हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो गया एन माइनस एम अपॉन एन माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई एम एन इज इक्वल टू डी। दिस एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू एन माइनस एम से एन माइनस एम कट गया तो यहाँ डी बचा इज इक्वल टू 1 बाई एम एन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो 1 बाई एम इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एम एन। सो 1 अपॉन एम माइनस एन माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए। इस पूरे को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। अब इसका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आया एम एन, एम से डिवाइड किया तो एन टाइम्स गया तो यहाँ लिख दिया एन माइनस, और एम से डिवाइड किया तो एन टाइम्स गया, नहीं यहाँ तो एम एन है, एम एन से ही डिवाइड किया एम एन तो 1 टाइम्स गया, तो इसलिए यहाँ माइनस एन प्लस 1, क्योंकि यहाँ माइनस एन माइनस 1 है इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एन। Now m n th term is a m n is equal to a plus m n minus 1 multiplied by d. This is equation 3. Put the value of a and d in equation 3 में वैल्यू रख दीजिए। तो a m n is equal to 1 upon m n, e का वैल्यू भी यही है, प्लस m n माइनस 1 प्लस और d की वैल्यू भी 1 अपॉन m n है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एन प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन, तो 1 अपॉन एम एन से 1 अपॉन एम एन कैंसिल हो गया, और एम एन से एम एन को कट करेंगे तो 1 टाइम्स कट होगा, तो इसलिए ए एम एन इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव। यदि इन दोनों क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।
इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक से या किसी दूसरी बुक से जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं या नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के और अपलोड कर दूँगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।